Welcome back once again to all my dear students. Myself Hitesh Patel from Lux School of Science. Today, video number 8, in which we are going to discuss about the stoichiometry and the stoichiometric calculation. Right? Before that, let us discuss which point we are discussing in the video number 7. First of all, we had discussed that scientific notation. Then after we had discussed about the addition, subtraction, multiplication, division, all these things will be there in the scientific notation, right? Then next point that we are going to discuss that we have discussed, that is a significant figure, right? So how the significant figure, how you can calculate the significant figure of the given digit. The rules we have also discussed. Now today we are going to discuss next point, that is the stoichiometry. But before discussing the stoichiometry, you have to know that how to balance the chemical reaction, right? How to, let us see, balancing the chemical reaction. First of all, balancing the chemical reaction. These things you have to know. ये चीज आपको आनी चाहिए कि कैसे कोई भी केमिकल रिएक्शन दिया हुआ है उसको मुझे बैलेंस करना है, तो कैसे मैं बैलेंस कर सकता हूं. एंड देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द स्टोइकियोमेट्री, राइट? लेट अस सी द फर्स्ट रिएक्शन. इट विल बी गिवन. लेट अस टेक सम रिएक्शन जस्ट लाइक हियर. इट विल बी गिवन फर्स्ट वन P4 solid plus O2, yes, gives P4O10. Understand? Phosphorus pentoxide, right? So यहाँ पे मुझे बैलेंस करना है, तो P कितना है 4, तो यहाँ पे भी 4, ऑक्सीजन कितना है 10, तो यहाँ पे मैं कितने मल्टीप्लाई करके 5 2 are 10, so this also 10. So between reactant and product, atom will be balanced on both the side, right? Second example, if we take PbS plus O2, PbS plus O2 gives PbO plus SO2, right? Plus SO2. Okay. Now if you want to balance this, see here Pb1, oxygen 2, here 3. So multiply this by 2. So here you have to multiply this by 2. This is also multiplied by 2. Understand? So 2s 2p, 2s 2p. ऑक्सीजन कितने हैं देयर? यहाँ पे 2 2 are 4, 4 plus 2 6. So यहाँ पे you have to multiply it by 3. So 3 2 are 6. Understand? So this is how you have to balance the chemical reaction. Third one, Pb3O4 plus HNO3. Pb3O4 plus HNO3 gives PbNO3 twice, PbNO3 twice plus what is that? PbO2 plus H2O, PbO2 plus H2. यहाँ पे देखो NO3 कितने टाइम्स है? 2 टाइम्स. सो हियर यहाँ पे NO3 2 टाइम्स है, तो इसको मुझे 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. बट यहाँ पे Pb कितने हैं? 3, तो यहाँ पे 1 and 2. So let us suppose if I multiply this by 2, then 2 plus 1 3. Okay, so 3. Now count it. Here 2 2 are 4, so I have to multiply here it by 4. अब मुझे क्या काउंट करना पड़ेगा? तो देखो 4NO3, 2 2 are 4NO3, 2 Pb, 2 plus 1 3 Pb. ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ पे? 4, तो 2 और यहाँ पे 2, 2 plus 2 4, और हाइड्रोजन 2 2 are 4, so 4 hydrogen. Understand? So this is how you can balance the chemical reaction. Understand? Next one, number 4. Fourth one, Ca3PO4 twice, Ca3PO4 twice plus H2SO4 gives H2SO4 gives CaH2PO4 and what? Twice plus CaSO4. CaSO4. यहाँ पे देखो PO4 कितने हैं? 2, तो यहाँ पे 2. Ca कितने हैं? 3. So you have to multiply this Ca3. 3 means if you multiply here 2, then 2 moles SO4. So यहाँ पे 2 moles. So hydrogen कितना है? 2 2 are 4, 2 2 are 4. Now it will be balancing. It will be very easy.
हाउ टू बैलेंस इट। कैल्शियम कितने हैं यहाँ पे 3, तो 1 और 2 3 हो गए। फॉस्फेट आयन 2, तो यहाँ पे भी 2, SO4 2, तो यहाँ पे 2। अंडरस्टैंड? ओके, नेक्स्ट वन, लेट्स सपोज Cu2s plus O2, Cu2s plus O2 gives Cu2O plus SO2। अंडरस्टैंड? Cu2O plus SO2, यहाँ पे बैलेंस करना है, कॉपर दो, यहाँ पे ऑक्सीजन, सल्फर एक, ओके ऑक्सीजन, तो यहाँ पे आपको 2। व्हाई? बिकॉज यू हैव टू कन्वर्ट द नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन द इवन नंबर, सो यू हैव टू मल्टीप्लाई इट। सो 2 + 2 4, राइट? सो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे भी 2। अंडरस्टैंड? 2 * 4, 4 + 2 6, सो यहाँ पे 3 * 6। नाउ इट विल बी बैलेंस। अंडरस्टैंड? नेक्स्ट one it will be given, see MnO2 plus KOH plus O2, MnO2 plus KOH plus O2, it will be gives what? K2MnO4 plus H2, K2MnO4 plus H2। यहाँ पे देखो K कितने हैं? 1, तो यहाँ पे Mn1, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन कितने हैं? 1, तो यहाँ पे चले जाएंगे, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, यहाँ पे 1 था, तो 2, तो K कितने होंगे? 2 हो गए। तो यहाँ पे ऑक्सीजन देखो 2 और 2 4, तो यहाँ पे यू हैव टू मल्टीप्लाई इट बाय 2, सो यहाँ पे कौन सा 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 4, तो नाउ सी इट विल बी बैलेंसिंग। 2Mn 2Mn, 2 * 2 = 4K, ऑक्सीजन काउंट 2 * 2 = 4, 4 + 4 8 9 10, 4 * 2 = 8, 8 + 2 10। Understand? So this is how you can balance the chemical reaction. Understand? Is it clear? Chalo, write down all this reaction, and then after we are going to discuss about the stoichiometry. चलो, stoichiometry। चलो, before discussing the stoichiometry, let us suppose if somebody asks the question that what do you understand about the chemical reaction। अगर कोई हमसे ऐसा क्वेश्चन करे कि केमिकल रिएक्शन किसको बोलते हैं, तो व्हाट इज योर आंसर? आपका आंसर क्या होगा? कि वी कैन से दैट लेट अस सपोज, लेट अस टेक वन एग्जांपल जस्ट लाइक A-A एंड B-B, ये रिएक्टर है, तो इनके बीच केमिकल रिएक्शन कब होगी कि यहां पे A और B बॉन्ड ब्रेक होंगे और यहां पे A-B के नए बॉन्ड बनेंगे, यहां पे ब्रेकिंग द बॉन्ड एंड फॉर्मिंग द बॉन्ड, राइट? फॉर्मिंग द बॉन्ड। अंडरस्टैंड? सो फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, सो इसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल रिएक्शन। क्यों? क्योंकि रिएक्टेंट के बीच केमिकल रिएक्शन हुई और बॉन्ड ब्रेक हुए और नए बॉन्ड बने, राइट? सो उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल रिएक्शन। एज फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक यहाँ पे H है और यहाँ पे क्लोरीन है, ये दोनों एक दूसरे से रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा? H+Cl। तो H+Cl ये जो बॉन्ड है ना, ये नया बॉन्ड बना, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ, राइट? फॉर एग्जांपल अनदर एग्जांपल जस्ट लाइक H2 है और ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के बीच कितने बॉन्ड होते हैं? डबल, तो यहाँ पे बॉन्ड ब्रेक हुए तो क्या आएगा? पानी बनेगा H+O-H, ये नए बॉन्ड बने, राइट? सो ब्रेकिंग एंड द फॉर्मेशन ऑफ द न्यू बॉन्ड दैट इज कॉल्ड द केमिकल रिएक्शन। उसको क्या बोलते हैं हम? केमिकल रिएक्शन, क्योंकि कई बॉन्ड ब्रेक होते हैं और न्यू बॉन्ड बनते हैं, राइट? प्रोडक्ट, सो दैट ओनली यू कैन गेट द प्रोडक्ट। ओके, नाउ let us take some example just like we have discussed
हमने केमिकल कॉम्बिनेशन के लॉ पढ़े, जिसमें पहला लॉ था लॉ ऑफ व्हाट, कंजर्वेशन ऑफ मास, कंजर्वेशन ऑफ मास। क्या था हमने पढ़ा था का मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, राइट। उन्होंने ये जो कंबशन रिएक्शन है ना उसका स्टडी किया एंटोनी लेवोसियर ने, और उससे ये कंक्लूजन आया कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। या यहां पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कब सेटिस्फाइड होगा ये हमको मालूम होना चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लिखता हूं कि H2, फॉर एग्जांपल देखो यहां पे H2 गैस है, राइट, और A ले लीजिए, चलो A प्लस B गिव्स AB। तो अगर ये 10 ग्राम है और ये 20 ग्राम है तो टोटल मास कितना आएगा, 30 ग्राम, राइट। इज इट क्लियर? सो यहां पे बैलेंस, अगर हम केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करेंगे तभी ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास विल बी सेटिस्फाइड, तभी हम बोलेंगे कि ये सेटिस्फाइड हुआ। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पे लेता हूं हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस, राइट, यहां पे मुझे पानी चाहिए ना, बट यू कैन नॉट गेट द वाटर, यू कैन गेट हाइड्रोजन पेरोक्साइड, बट इफ यू वांट द वाटर, व्हाई? बिकॉज़ यू हैव टू सैटिस्फाई द what law of conservation of mass, and to satisfy the law of conservation of mass you have to balance the reaction। हमको बैलेंस करना पड़ेगा रिएक्शन को, राइट। कैसे बैलेंस करते हैं देखो, अगर मुझे पानी चाहिए H2 प्लस 1/2 O2 गैस, अब क्या मिलेगा, H2O। नाउ सी 1/2 O2 means only one oxygen is there, understand? So this is how you can balance the chemical reaction। As for example, just like if I take the one example, N2 gas plus H2 gas gives what, twice NH3 gas। This is the preparation of ammonia, right? तो यहाँ पे देखो बैलेंस करना है, तो 3 to the 6, so यहाँ पे 3, now it will be balanced। See 2 nitrogen, so here also 2 nitrogen, hydrogen 3 to the 6, 3 to the 6। अभी इसके मोल कितने हैं, 1, ये कितने हैं, 3, और ये कितने हैं, 2। सो दिस वी कैन से इट एज अ स्टोइकियोमेट्रिक मल्टीपल। Understand? Is it clear? So these things we have to know. Now let us take some examples. Let us see। अगर मैं यहां पे लिखूं कि N2 गैस है और यहां पे 3H2 गैस, राइट, तो क्या मिलेगा, ट्वाइस NH3 गैस, अमोनिया। तो पहले हम मॉलिक्यूल्स लिखते हैं, चलो मॉलिक्यूल्स, चलो N2 में कितने मॉलिक्यूल्स है बेटा, ओनली 1 मॉलिक्यूल्स, क्योंकि यहां पे कोएफिशिएंट कितना है, 1, सो हियर 1 मॉलिक्यूल्स। यहां पे 3 मॉलिक्यूल्स ऑफ H2 और यहां पे 2 मॉलिक्यूल्स, अंडरस्टैंड और नॉट, पहले मॉलिक्यूल्स हो रहा है। अगर ये 2 मॉलिक्यूल्स करो तो ये कितना होगा, 6, तो ये कितना होगा, 4, अंडरस्टैंड? सो दिस थिंग्स यू हैव टू नो। नाउ सेकंड वन बिकम्स मोल। चलो इसके मोल कितने हैं, 1 मोल, राइट, इसके मोल कितने हैं, 3 मोल, और इसके मोल कितने, 2 मोल, राइट ना, मोल आ गया। नाउ लेट अस सी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। सो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस व्हाट, टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स। चलो टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स मींस 1 into एवोगैड्रो नंबर, मोल्स into एवोगैड्रो नंबर, यहां पे 3 into एवोगैड्रो नंबर, और यहां पे 2 into एवोगैड्रो नंबर। So what is Avogadro number that you all know, that 6.022 into 10⁻23, ये मालूम है आपको, right? Is it clear? So that is the number of molecules. Okay? Now it will become what, mass। चलो मास कितना है, इसका मास कितना आएगा, नाइट्रोजन N2 है ना, तो 14 2 28 ग्राम,
राइट। यहाँ पे 3 टू 6 तो 6 ग्राम। यहाँ पे अमोनिया नाइट्रोजन 14 17 means 34 gram. Understand? So this is the mass. And if you want to find out the volume, then what is the volume? यहाँ पे volume 1 mole means 22.4 liter. So यहाँ पे 22.4 liter. यहाँ पे 3 moles है ना, तो 3 into 22.4 और यहाँ पे कितने मोल है? 2 into 22.4. Why? Because at STP means standard temperature and pressure, 1 mole that is equals to 22.4 liter and that is equals to 6.022 into 10 raised to 23. That is either molecules or atom or you can say ion. Understand? Is it clear? So these things you have to know, right? और अगर हमको मोल फाइंड आउट करना है तो मोल कैसे हम फाइंड आउट करते हैं? तो n that is equals to what? Q, that is the charge, right? And divided by what? That is the Avogadro number and that is equals to mass upon molecular mass and that is equals to V upon what? V, liter upon 22.4. Understand? Is it clear? So this is how you can find out what? Moles. Here this V, volume, that will be given at STP. Right? Is it clear? So these things you have to know. Right? Note down कर लो. चलो नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। ऐसा ही अगर मीथेन का कंबशन ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होता है, मीथेन मींस व्हाट? CH4 गैस, ऑक्सीजन मींस O2 गैस, इट विल गिव्स व्हाट? क्या बनेगा? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। अंडरस्टैंड? बैलेंस क्या होगा? तो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 4 है तो यहाँ पे 2 2 2 4 सो यहाँ पे 2, राइट? नाउ काउंट इट। पहले क्या लिखेंगे हम? मॉलिक्यूल्स। चलो यहाँ पे मॉलिक्यूल्स कितना? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2। अंडरस्टैंड? फिर बाद में क्या आएगा? तो अगर ये मॉलिक्यूल्स डबल करें तो ये 2 तो ये 4 तो ये 2 तो ये 4, राइट? इज इट क्लियर? नाउ मोल्स। Now what is moles? यहाँ पे कितना मोल्स है? 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 2, right? Now total number of molecules. Total number of what? Molecules. यहाँ पे कितने molecules? Moles 1 है into Avogadro number. यहाँ पे moles कितना है? 2 तो into Avogadro number. यहाँ पे moles 1 into Avogadro number और moles 2 into Avogadro number. Understand? So mole multiplied by Avogadro number, that is called the total number of molecules. Understand? Now next one it gives what? Mass. चलो इसका मास कितना होगा? 12 plus 4 16 ग्राम। इसका मास 4 16 4 जा 64 ग्राम। अंडरस्टैंड? क्योंकि ऑक्सीजन का कितना है? 16 2 2 जा 4 4 multiplied by 16 so that is equals to 64, right? कार्बन डाइऑक्साइड 12 plus 32 means 44 ग्राम, राइट? और यहाँ पे 82 जा 36 ग्राम। अंडरस्टैंड? ये मास हो गया। और फिर बाद में वॉल्यूम एंड एसटीपी। चलो यहाँ पे वॉल्यूम कितना आएगा? इट विल बी 1 multiplied by 22.4 लीटर। यहाँ पे 2 multiplied by 22.4 लीटर, यहाँ पे 1 multiplied by 22.4 लीटर एंड यहाँ पे 2 multiplied by 22.4 लीटर। Understand? So this is how you can find out the number of moles, then number of molecules, then mass. All these things will be you can find out with the help of stoichiometry. Okay. So now then after let us start some examples. 2 examples are given in the textbook. Let us see that examples, right? See here first example. See यहाँ पे 2 एग्जाम्पल दिए हुए हैं। लेट अस स्टार्ट दैट एग्जांपल्स। क्या दिया हुआ है देखो,
एग्जाम्पल नंबर प्रॉब्लम 1.3 यहाँ पे दिया हुआ है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ वाटर प्रोड्यूस्ड बाय द कंबशन ऑफ 16 ग्राम ऑफ मीथेन the combustion of 16 gram of methane. Understand that is called CH4, right? चलो तो हमको क्या फाइंड आउट करना है कि अमाउंट ऑफ वाटर, राइट? तो चलो देखते हैं कि कितना वाटर मिलेगा यहाँ पे। तो कंबशन ऑफ मीथेन, मीथेन का कंबशन हुआ तो पहले इक्वेशन लिखो, रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, इसको बैलेंस करो तो यहाँ पे 2 तो यहाँ पे भी 2। अभी देखो कितने ग्राम मीथेन दिए हुए, 16 ग्राम। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 16 ग्राम कंबशन हो गए तो कितने वाटर मॉलिक्यूल्स और हाउ मच अमाउंट ऑफ वाटर विल बी फाइंड आउट। सी मीथेन का पहले कितने ग्राम था, तो ये 16 ग्राम मीथेन में कितने वाटर मॉलिक्यूल्स मिले, तो 2 मोल्स, so that is equals to what? So यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 30 18 36 ग्राम मिले मीथेन H2O। तो यहाँ पे 16 ग्राम है तो कितने ग्राम मीथेन मिलेंगे, तो हमको 36 ग्राम वाटर मिलेंगे। क्यों? क्योंकि 16 ग्राम में 36, तो 16 ग्राम में ही पूछा है ना, तो 16 ग्राम combustion of methane you can get the 36 gram of water. Why 36? Because you all know that यहाँ पे इसका molecular mass कितना आएगा, so T multiplied by 18, so that is equals to 36. Understand? ये 18 कैसे आया, तो H2O that is equals to 2 into hydrogen plus 1 into oxygen, so 2 into 1 plus 1 into 16, right? So 2 plus 16, so that is equals to 80. Understand? So this is how you can get the 36. अगर 16 ग्राम मीथेन का कंबशन होगा ऑक्सीजन के प्रेजेंस में तो कितने ग्राम मीथेन वाटर मिलेंगे, 36 ग्राम। तो यहाँ पे ऐसा ही पूछा 16 ग्राम मीथेन का कंबशन तो कितना वाटर मॉलिक्यूल्स विल बी देयर, यू कैन गेट 36 ग्राम्स ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स। अंडरस्टैंड? नोट डाउन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखते हैं। ओके, लेट्स स्टार्ट नेक्स्ट क्वेश्चन 1.4। सी इट विल बी गिवन हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड to produce 22 gram carbon dioxide, to produce 22 gram CO2 after combustion। चलो यहां पे देखो, पहले तो यहां पे रिएक्शन लिख दो कि मीथेन का कंबशन होगा किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में। क्या मिलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। यहां पे बैलेंस कर लो। चलो एक काम हुआ है। चलो अभी क्या दिया हुआ है, हाउ मेनी मोल्स ऑफ मीथेन आर रिक्वायर्ड, कितने मोल्स मीथेन रिक्वायर्ड है टू प्रोड्यूस 22 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, यहां पे 1 मोल मीथेन है, राइट? तो यहां पे मास कितना है, देखो इसका मास 44 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड। 44 gram carbon dioxide produce 1 mole of methane, right? So 44 gram CO2 produce 1 mole methane. So here it will be given 22 gram CO2 produce how many mole methane, right? So here 22 multiplied by 1 divided by 44, so that is equals to 1 by 2, so that is equals to 0.5 mole. Understand?
Is it clear? So 0.5 moles of carbon dioxide gas. Right? Is it clear? So 0.5 moles after combustion. Okay? Right? So here we had discussed about stoichiometry and their calculation and how to balance the chemical reaction. Right? In the next lecture, we are going to discuss about the limiting reagent. That is the most important topic, right? About the limiting reagent. So in this video, up to here is enough. In the next video, we are going to discuss about the limiting reagent. Okay? Thank you very much.